we want to do the best case analysis of this insertion sort, right? So how do we know that on which kind of input this insertion sort will have a best case? So for that, you need to look at its condition. Do we have any kind of condition in this algorithm? So first statement, second statement, third statement, no. And fourth statement, we have condition. So in fourth statement, we have condition like I greater than 0 and a of I is greater than key. मान लो कि अगर फोर्थ कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब उसको फिफ्थ एंड सिक्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करने होंगे। एम आई राइट? जब फोर्थ कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उसको फिफ्थ एंड सिक्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करने होंगे। इस एल्गोरिथम पे से हमें पता चलता है। तो हमें ऐसा ऐसा डेटा चाहिए कि जिसमें फोर्थ कंडीशन फॉल्स हो एंड दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ बेस्ट केस डेटा, बेस्ट केस इनपुट फॉर दिस इंसर्शन सॉर्ट। तो अभी आई ग्रेटर देन 0 छोड़ देते हम। यहाँ पे दूसरी कंडीशन है कि ए ऑफ आई ग्रेटर देन की, ए ऑफ आई ग्रेटर देन की। आई क्या है आपका? जे माइनस वन। ओके, एंड व्हाट इज की? की इज योर जे ऑफ वन, मतलब एलिमेंट एट फर्स्ट पोजिशन, एंड आई इज इक्वल टू जे माइनस वन मीन्स एलिमेंट एट जीरोथ पोजिशन, zeroth position and first position, right? This is your I, this is your I, and this is your J. J is 1, I is 0. Okay, so A of I and this is also key. आपका J वो आपकी की है, और हमें क्या चाहिए कि A of I, this is A of I इज ग्रेटर देन की नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 10 है, तो दिस कैन नॉट बी ग्रेटर देन दिस, राइट? तो यहाँ पे 11 होना चाहिए। तो 11 होगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। बिकॉज व्हाट इज देयर एट ए ऑफ आई? एट ए ऑफ आई वी हैव 10 एंड की इज व्हाट? 11। सो ए ऑफ आई दैट इज 10 इज ग्रेटर देन 11, कंडीशन इज फॉल्स एंड हेंस it won't execute statement number 5 and 6. Okay, similarly it go for second. अब J हो गया 2, अब J हो गया 2 तो आपकी की भी 2 हो गई, दिस इज योर J, एंड I होगा आपका I माइनस वन, so this will be your I. Now this will be your I in next iteration. तो अब सेम कंडीशन, A of I, this is your A of I, this is your A of I in next iteration, and this is your key. We want that A of I should be less than key. तो यहाँ पे की ज्यादा होनी चाहिए, यहाँ पे 12 या एनी नंबर ग्रेटर देन 12 होना चाहिए। ओके, तभी ये कंडीशन फॉल्स होगी। इन शॉर्ट वी हैव असेंडिंग ऑर्डर डेटा, सिमिलर काइंड ऑफ डेटा इफ वी हैव, देन it will be the best case of insertion sort. So is it clear how to decide best case input for any algorithm? So this is the way we can decide the best case input for insertion sort. Now we have decided that ascending order data are considered to be the best case input for insertion sort which perform ascending order sorting. insertion sort ascending order में sorting कर रहा है और उसको ascending order में ही data देंगे तो उसका वो best case अगर होगा। So we have decided that ascending order input is considered as a best case input for this insertion sort. Okay, now let's execute this insertion sort on ascending order sorted data, and let's decide the frequency of execution of each statement for our analysis. So here these are the data 10, 11, 12 and 13. Consider only 4 elements. This is zeroth position, this is first position in array, this is second, this is third, right? This indicate position in array. Now j equal to 1 के लिए start होगा। Okay, j equal to 1 means we are starting from here. J is equal to 1. We are starting from here because we consider that first element is already sorted and we place this element. It means insertion sort works in this way. It places this 11 in
sorted data in the array preceding it. Then again, after placing 11, it go for 12. After placing 12 in sorted data, in sorted order, it go for 13 and so on. So right now we are looking for first element, this 11. 11 को हमें आगे के अरे में रखना है उसको. तो j इक्वल टू 1. अब की, दिस इज योर की, ये आपका की हो गया. ओके, i इज इक्वल टू j माइनस 1. सो i विल बिकम 0. i हो गया हमारा 0. अब वो कंपेयर करेगा, i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. यस, i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू. e ऑफ i इज ग्रेटर देन की. व्हाट इज e ऑफ i? इट्स 10. एंड व्हाट इज की? इट्स 11. इज इट ग्रेटर देन? नो, कंडीशन इज फॉल्स. तो वो फिफ्थ एंड सिक्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा एंड इट कम टू सेवंथ स्टेटमेंट. तो i प्लस 1, i क्या था आपका? 0. अब i प्लस 1 दैट इज 1 इज इक्वल टू की, मतलब 11 था, उसके ऊपर ही उसको ओवरराइट कर दिया 11. तो एक रोटेशन हो गई. अब दूसरी रोटेशन होगी 12 के लिए. ओके, देन थर्ड रोटेशन होगी 13 के लिए व्हेन j बिकम 3. अब j 3 बन गया तो एक भी टाइम वो फिफ्थ एंड सिक्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा. ओके, तो अब इस केस के लिए हम पता करते हैं कि कितनी बार फॉर लूप एग्जीक्यूट हुआ, कितनी बार सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेटमेंट सब एग्जीक्यूट हुए. लेट्स चेक इट आउट. So can anyone tell me that how many time this first statement get executed in this case? 1 से लेके स्टार्ट हुआ, 1 2 3 and then last termination condition. कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ? It execute. What is n here? N is 4 times. n is 4. ओके, तो यहाँ पे कितनी बार ये लूप एग्जीक्यूट होगा? 1 के लिए इनसाइड जाएगा, 2 के लिए इनसाइड जाएगा, 3 के लिए इनसाइड जाएगा एंड इट वॉन्ट गो इनसाइड फॉर 4. ओके, तो 4 बार एग्जीक्यूट हुआ, 4 एलिमेंट थे तो n एलिमेंट होंगे तो कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? इन शॉर्ट इट एग्जीक्यूट n टाइम्स. ओके, नाउ उसके इनसाइड के जितने भी स्टेटमेंट है वो एक बार कम एग्जीक्यूट होंगे फॉर लूप से, क्योंकि वो लास्ट टर्मिनेशन कंडीशन थी, उसके लिए इनसाइड नहीं जाएगा. तो ये वाला स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? इट एग्जीक्यूट n माइनस 1 टाइम. ये वाला भी कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? फोर्थ स्टेटमेंट, इट ऑल्सो एग्जीक्यूट n माइनस 1 टाइम. नाउ कम टू द while loop. while loop विल ऑल्सो गेट एग्जीक्यूटेड n माइनस 1 टाइम, लेकिन कंडीशन फॉल्स हो रही है. ओके, ये दोनों स्टेटमेंट 0 टाइम एग्जीक्यूट होंगे बिकॉज वी आर सेइंग दैट इट्स अ बेस्ट केस. ये दोनों 0 टाइम एग्जीक्यूट होंगे. दिस सेवन स्टेटमेंट विल गेट एग्जीक्यूटेड n माइनस 1 टाइम. So here if you take sum of this 1 2 3 4 5, we have 5n minus 4. 1 2 3 4, right? So let me to show you the exact table for base case analysis of this insertion sort. First statement uska s by, as all statement are normal statement, that means not recursive statement, s by steps per execution we will consider 1. We will increment statement by 1. Now we will increment counter by 1. Frequency of execution of first statement, that is for loop, वो n टाइम, उसके इनसाइड के सभी स्टेटमेंट n माइनस 1 टाइम एग्जीक्यूट हो रहे हैं. फिफ्थ एंड सिक्स स्टेटमेंट जो वाइल लूप के इनसाइड था वो स्टेटमेंट, वो सारे दोनों स्टेटमेंट 0 टाइम एग्जीक्यूट हो रहे हैं. और जो लास्ट की वाला स्टेटमेंट है वो n माइनस 1 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है. सो इफ यू मल्टीप्लाई s by e into frequency, we have a n minus 1, n minus 1, n minus 1 and n minus 1. So the steps count equation or function on input n is equal to 5n minus 4. So this algorithm execute 5n minus 4 number of statement on input of n numbers. So if you assign theta notation, it will take theta of n.